بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فریہ ادریس آفیشیل۔ نور مقدم کیس ہم نے کافی دن پہلے اس سے بات کی تھی۔ کل ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے ملزم ظاہر جعفر اور ان کے والدین سمیت 12 ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے، جبکہ سماعت سے ایک روز قبل نور مقدم کے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں نے پریس کلب میں اظہار یکجہتی کیا۔ بہت سارے لوگ ویسے بھی جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ حاضرین سے خطاب کرنے والوں نے نور مقدم کی جو ایک پرسنالٹی تھی اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ بڑی سافٹ سپوکن تھی، بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ تھی، اور ساتھ ساتھ نور کے لیے جو انصاف ہے، جسٹس فار نور، یہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اور ساتھ ساتھ جو مظاہرین تھے، وہ جو قاتل ظاہر جعفر ہے اس کو بھی، اور جو تمام لوگ شامل ہیں اس قتل میں، کیونکہ اکیلا ظاہر جعفر تو اس نے تو قتل کیا، مگر آرکسٹریٹرز تھے، بہت سے لوگ تھے جو روک سکتے تھے، انہوں نے نہیں روکا، ان سب کو روکنے کی بات کی گئی۔ اس کی کچھ جو سیریمنی میں لوگوں نے باتیں کی ہیں، بڑا دل کے اوپر اثر ہوا، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، سب کو سنیے اور انہی کو ہم آج آپ کو سنائیں گے۔ سب سے پہلے عثمان خالد بٹ، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کی ایکٹنگ کے مداح ہیں، انہوں نے کیا کہا نور کے بارے میں۔ لیٹس واچ دیٹ۔ This is what must end, and inshallah this is what we will achieve, and speak up and speak out for everyone, not just Noor, because that is what Noor would have wanted. Start or continue asking questions. We must create a better society for our women. It starts with us. We need to really look inward and critically examine how we are contributing to a culture of misogyny and change that. It starts with us. میری جوڈیشری سے اپیل ہے کہ اس کیس کو جلد سے جلد اختتام تک پہنچایا جائے and that we all may stand as a nation on the right side of history. سارہ مقدم نور کی بہن ہے۔ اس ایونٹ سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی چھوٹی سی، اور لوگوں سے کہا تھا کہ پلیز ادھر آئیں۔ پہلی دفعہ اس پہ انہوں نے بات کی تھی، اینڈ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہماری فیملی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم اب اس سے بات کریں، لیکن بات کرنا ضروری ہے، اور بڑی تکلیف ہوئی ان کو جو لوگوں نے نور کے بارے میں باتیں کی تھی۔ کیا کہا اس ایونٹ پہ نور کی بہن نے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ My beautiful Noor, if I knew the last time I was looking at you was my last time, I would have never let you out of my sight. If I knew the last time we spoke was our last time, I would have never stopped talking. If I knew the last time we laughed was our last time, I would have never stopped laughing. From the moment you were born, I was completely in love with you. You were the perfect friend, the perfect sister. You were my better half, my better version, my soulmate. And now I will have to live incomplete without you for the rest of my life. We had so many plans, so many dreams, so many places to travel together. And now I will have to go alone everywhere. Life has lost all meaning without you. We miss you every second, Noor. You didn't deserve this. No one deserves this. There is no Noor left in this world without you. You were one of the kindest souls I have ever known. To the world, you were my baby sister, but to me, you were my world. I am honored to be your sister. We always knew you were special, but today the world has seen it too. You always took a stand for others, and today the entire Pakistan is standing with you. We will continue to fight till you get justice. The world is with you. Thank you for giving women in Pakistan and around the world a voice against violence. Your sacrifice will not go in vain. We promise that. We love you and we miss you. Keep laughing from the heavens till we meet again. Inshallah. سابق سفیر طارق خان افریدی کی اہلیہ کرسٹینا افریدی، جو کہ نور کو اس کی پیدائش کے وقت سے جانتی ہیں، فیملی فرینڈ ہے، انہوں نے بھی حاضرین کو یہ بتایا کہ انہوں نے نور سے پیاری بچی نہیں دیکھی ہے، انہیں بھی دیکھی ہے۔ اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف سے کام لو۔ یہی طریقہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہم اس مجلس کا اختتام ایسی خوبصورت شخصیت کا اس دردناک طریقے سے ہماری زندگیوں سے چھین لیا جانا نہایت اذیتناک ہے۔ اب ہم جلد انصاف کے حصول کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی طرح
आइंदा भी आप हमारे साथ नूर के जल्द इंसाफ के लिए इजहार यकजहती करें और पुरअमन तरीके से हमारे साथ खड़े रहें, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है कि इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद और उसकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करती है। नूर को यकीन था कि इस्लाम ही औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। तारा अब्दुल्ला हमेशा जो बोलती हैं दिल से बोलती हैं, ऐसी बात करती हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, फोर्सफुली अपना मौक़िफ़ देती हैं, और क्या कहा उन्होंने नूर के लिए, ज़रा ये भी देखिए। ने भी हिम्मत नहीं हारनी। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि आपको बता दें, दिखला दें और बहुत खूब तरीके से बावर करवा दें कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और खड़े रहेंगे आपके साथ, no matter how long it takes, no matter how long it takes। आखिरकार फतह हक और सच की होगी, अदलो इंसाफ की होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और हमें इस बात का पूरा पुख्ता यकीन है कि अदलो इंसाफ का बोलबाला होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, होगी और ज़रूर होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं हाथ उठाने के लिए और कहने के लिए कि हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं। मेरे साथ हाथ उठाइए प्लीज़। हम सब निगरानी कर रहे हैं, हमें कोई मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं, शुक्रिया, हमें किसी से कोई मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी रियासत के किसी इंस्टीट्यूशन के किसी ओहदेदार का नाम लूं या ओहदा पुकारूं, क्योंकि मुझे अभी तक 68 बरस की उम्र में अभी तक रियासत पर यकीन है, रियासत के इदारों पर यकीन है। रियासत होगी माँ की जैसी। किसी ज़माने में हम ये नारा लगाया करते थे जब हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए तहरीक लड़ रहे थे, रियासत होगी माँ की जैसी। तो आज नूर मुकद्दम को उस माँ की ज़रूरत है। आइए हम सब वादा करें अपने आप से और आप सब से, सबके सामने पब्लिकली, we will continue to stand with the family of Noor in steadfastness, in strength, in courage, in fortitude, and above all, in hope, in faith, in trust, and in confidence that justice will be served and Noor will have justice. मैं आखिर में आप सबकी इजाज़त के साथ, ज़्यादा वक्त मुझे मालूम है किसी के पास नहीं है, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ साहब से बेहतर कौन कह सकता था, तो फैज़ की आवाज़ में एक नज़्म के कुछ छोटे से चंद इक़्तिबासात एक्सर्प्ट्स आपके सामने पेश कर रही हूँ। आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुज़ारें कि निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज़ में शीरीनी फ़रदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गिरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शब रोज़ को हल्का कर दे, जिनकी आँखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शमा मुनव्वर कर दे, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे। इश्क का सिर्रे नेहा जान तपां है जिससे, आज इकरार करें और तपिश मिट जाए। हर्फ़े हक़ दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, हर्फ़े हक़ दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। मत समझो नूर कि हमने भुला दिया,
मत समझो कि हमने भुला दिया। शुक्रिया। इसी इवेंट पर नूर मुकद्दम की दोस्त हैं एक अमन उमर, उन्होंने नूर की सबसे करीबी दोस्त आयला हुसैन की एक पोम थी जो कि उन्होंने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने देखा कि नूर की एक और दोस्त थी मरियम अतीक, उन्होंने एक ख़त पढ़ के सुनाया जो उन्होंने नूर को लिखा था। काफ़ी डिस्पॉन्डेंट माहौल हो गया, इसको भी देखिए। How could she pass away? I'm scared for my future now. I miss you, Norafi. I know you gave a huge sacrifice, and you are watching from heaven waiting us to get justice, so nothing like this can ever happen again. Norafi was a kind and caring person. He was a great Muslim and a wonderful role model. He was a light in this dark world, and now it's gone. Why did this happen? I miss you, Norafi. We all miss you. नूर के वालिद शुरू में आके उन्होंने कोशिश की थी बात करने की, एम्बेसडर शौकत अली मुकद्दम, उन्होंने मुजाहरे में जो शिरकत करे थे लोग, उनका शुक्रिया किया जब वो आए स्टेज पर। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल वक्त है, क्या इस पर क्या बात कह सकते हैं, एक मुश्किल तरीन वक्त है, मगर उन्होंने सबको इकट्ठा किया, उन्होंने शुक्रिया किया कि लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर बहुत सारी बातें भी उन्होंने उसमें ज़िक्र की। कहा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इत्मीनान है कि ज़रूर सज़ा दी जाएगी, और जो दुख है उनका उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेट्स वॉच नूर्स फादर। ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल करके, और नूर के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ मीडिया के साथ इंटरव्यू में ये यकीन दिलाया कि वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एडिशनल जस्टिस जो इसके कचहरी के हैं उनसे मोदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस केस को जल्द अज जल्द निपटाएं और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे। जो कातिल है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे, और उनके साथ जो एक्म्प्लिसेस हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। और मैं तर्जुमानी करता हूँ, यहाँ माँ बेटियाँ जो बैठी हैं कि वो सब चाहते हैं कि इसको डेथ पनिशमेंट मिले इस कातिल को, मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। Ladies and gentlemen, this is not only a test case for Pakistan, it is being followed by everyone in Pakistan as well as abroad. दुनिया भर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, विजिल्स हो रहे हैं। कोरिया में मैं एम्बेसडर था, वहाँ हो रहे हैं, कजाकिस्तान में हो रहे हैं जहाँ मैं एम्बेसडर था, डबलिन में आई स्पेंट 3 years देयर, इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, हर जगह जो है। तो ये एक इंटरनेशनल केस हो गया है, एक टेस्ट केस हो गया है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें जस्टिस की फतह हो। ये मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम बेटियां महफूज रहें, उनको ये दिन ना देखना पड़े। और ये मेरे मिशन का, ज़िंदगी का मिशन है कि नूर के लिए जस्टिस हो, और पाकिस्तान की औरतें अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, सड़कों पर महफूज फील करें, उनको इस तरह की अजियत ना देखनी पड़े, ना उनके माँ बाप को देखना पड़े। लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरी फैमिली का साथ देना पड़ेगा, और सिविल सोसाइटी आप जितने यहाँ हैं ये शो कर रहा है कि आप जो हैं आप इंसाफ चाहते हैं। आप सारे मेरे यहाँ कोलीग्स हैं, फॉरेन ऑफिस के, नेवी के दोस्त हैं,
यहाँ सिविल सोसाइटी के दोस्त हैं, सब क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग आए हुए हैं, मीडिया, इतना मीडिया आया हुआ है और मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह वो फॉलो कर रहे हैं और इस तरह जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द मीडिया. रोटरी क्लब के हमारे नुमाइंदे हैं और दूसरे NGOs वगैरह हैं. मैं एक एक का आपका सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि we'll have to make a sustained effort by the civil society and by the press and media. तो फिर जो है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपकी दुआ से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि नूर जो है वो इंसानों से सिर्फ नहीं, वो तो जानवर से भी मोहब्बत करती थी. She was a very soft child, delicate child, and she used to love even the animals. Just to quote one instance, एक बार मेरे बेटे मोहम्मद अली के साथ, बहुत सारों को मैंने बताया भी है, वो वहाँ दुकान में गया मोहम्मद अली और गाड़ी से उतर कोई चीज़ लेनी थी, तो नूर गाड़ी में बैठी हुई थी. उसने देखा एक कुत्ता जो है गर्मी में बहुत परेशान है, तो वो बाहर निकल करके पानी लेकर आई और उस कुत्ते को पिलाना शुरू कर दी. मोहम्मद अली ने कहा कि ये तो पालतू कुत्ता नहीं है, ये तो वो काट लेगा. बोले कि नहीं, आई डोंट माइंड, ही इज़ फीलिंग वेरी थर्स्टी. तो ये उसकी क्वालिटीज़ थी. बहुत सारे लोग अब कीचड़ उछालते हैं और बात करते हैं, मैं समझता हूँ ज़रूरी यहाँ बताने. शी वॉज डूइंग कैलीग्राफी, अल्लाह और रसूल के नाम लिखती थी. आपको मैं दिखाऊंगा किसी वक्त. डायरी थी उसकी जिसमें 99 नाम अल्लाह सुब्हान तआला के उसने लिखे थे अलग अलग. इसमें ये हर एक को, मुझे तौफीक नहीं हुई इस तरह काम करने के लिए, लेकिन उसको तौफीक हुई. ये शहीद है इंशाअल्लाह. आप सब दुआएं करें और इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा. फी अमानिल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद. ये इवेंट हर तरीके से एक तकलीफ दे इवेंट था. बहुत पेनफुल होगा वालिदैन के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, मगर सब इकट्ठे हुए और पूरे पाकिस्तान के लिए. और मेन रीज़न उसका यही था कि किसी भी तरीके से इंसाफ ये ना हो कि ना हो पाए, उसकी तरफ ही फोकस करना था. सो जब ख़त्म हो रहा था इवेंट तो आखिर में नूर मुकद्दम की कज़न मदिया फवाद ने एक रिक्कत तमेज़ दुआ करवाई. मुज़ारे का इख्तिताम शुरका की जानिब से मोमबत्तियाँ रोशन करने और नूर और इंसाफ के लिए चंद लम्हों की खामोशी पर हुआ. ये भी देख लीजिए. ऐ अल्लाह, इस मुल्क के निज़ाम में अपनी रज़ा से इंसाफ राइज कर दे. अल्लाह, इस केस को सालिमों के लिए इबरत बना दे. या अल्लाह, हमें दीन की सही समझ अता कर दे, हमें इस पे चलने की तौफीक अता फरमा दे. या अल्लाह, नूर के चाहने वालों को, ख़ास तौर पे इसके वालिदैन को, या अल्लाह इनको सब्र जमील अता कर दे. या अल्लाह इनको सुरखरू कर दे. या अल्लाह, हमारी नूर को शहादत का रुतबा दे दे. या अल्लाह, हमारी नूर को शहादत का रुतबा दे दे. या अल्लाह, हमारी नूर को शहादत का रुतबा दे दे. या अल्लाह, उस पर रहम कर दे, उसकी कब्र को रोशन कर दे, उसकी कब्र को कुशादा कर दे. या अल्लाह, वो जन्नतुल फिरदौस मांगती थी, या अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे दे. अल्लाह, हम इस जिहाद में आपकी मदद मांग रहे हैं. आप हमारा सहारा हैं, हमने आप ही पे भरोसा किया है. या अल्लाह, हमें इंसाफ हासिल करने में सुरखरू कर दे. आमीन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद.